Hello student, welcome to my class of computer subject for class 10th. In this video you will understand the DBMS part, second learning outcome, that is create and edit the table using wizard and SQL commands. Before this video we have covered the first learning outcome, which is appreciate and concept of database management system, in which we have cleared the concept regarding to the what are the information data, okay, and concept database, advantage of database, features of database, and what are the different keys which is introduced in database management system, and what is DBMS, what is RDBMS, okay, and how the flat file system are not able to keep our data properly, okay, like that. In this video we will cover the second learning outcome. In this we will understand introduction to a RDBMS with briefly according to the database object like table, query, forms and reports of other database, okay, and other database, and terms in database like table, field, record, steps to create the table using table wizard, okay, data type in database. Data type, it means to say a type which can store the data, okay, that represents a type like number, text, memo, date, time, etc. Next one thing, option to set the primary key in a table view, okay, and DDL command, that is data definition language, okay student. And as well as we will cover some practical part also, in which we will understand how to start RDBMS and observe the part of the main window, that means to say whatever the software will contain of RDBMS. And second one part, identify the database object, create the sample table, okay, whatever we will create the sample table in which you will understand how many rows and column are there and fields are there, and category using wizard, and practice to create a different table from the available list choosing to the field, okay, and from the available field assign the data type, okay, field, set the primary key, edit the table in design view, okay, enter the data in a field, and at last we will cover the create and edit table using DDL command. So student, let's begin. For the session 2 database management system, create and edit tables using wizards and SQL commands. So first we will understand some main major points before we done the practical session. A table is a set of data elements that is organized using a model of vertical columns and horizontal rows. Vertical columns top to bottom, horizontal rows left to right. A table has a defined number of columns but can have any number of rows. Each row is identified by the values appearing in a particular column, identified as a unique key index or the key field. Table basically हो क्या रहा है कि जो आपका columns और rows दोनों का combination है वो आपका table है. Excel की आप sheet देखते हैं तो Excel की sheet आपका टेबल का काम करती है. एक्सेल की शीट पर जो आप देखते हैं रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये आपके कॉलम्स जो आपको टॉप पर नजर आते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 1 2 3 उसके कॉलम्स नजर आते हैं. इसी तरीके से बेस एप्लीकेशन में भी आपकी टेबल क्रिएट होती है और टेबल में आपका डेटा स्टोर होता है. अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स वैल्यूज दैट इज ऑर्गेनाइज्ड. जिसमें क्या रख रहे हैं हम, वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं और ये वैल्यू ही है जो आपके डेटाबेस पर काम करने वाली हैं. जितनी भी हम क्वेरीज चलाएंगे तो मेन थिंग हो गया आपका वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज. कॉलम्स, फील्ड, एट्रीब्यूट, अब तीनों का मतलब लगभग सेम है. या तो हम इन्हें कॉलम के नाम से कॉल करेंगे, फील्ड बोलेंगे, या फिर हम इन्हें एट्रीब्यूट्स बोलेंगे. A column is a set of data, values of a particular simple type, one of each row of the table. The column provides the structure according to which the rows are composed. प्रैक्टिकली सेशन में अगर हम इसको समझते हैं तो आपने अटेंडेंस रजिस्टर देखा होगा जिसमें ऊपर लिखा होता है रोल नंबर, नेम और एक डेट डली होती है. फिर आपके टीचर आपकी अटेंडेंस लेते हैं, बोलते हैं भाई ए बी सी डी जो भी आपका नाम है, तो आप बोलते हैं यस प्रेजेंट जी, मैं अवेलेबल हूं. तो फिर टीचर क्या करता है, उस डेट के आगे आपकी प्रेजेंस लगा देता है. तो ऊपर जो फील्ड हैं जो बताती हैं कि यहां पर आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, इट मींस आप कहां पर पी लिख रहे हैं, जहां पर प्रेजेंट और डेट डली हुई है. आपका नाम कहां लिखा है, जहां ऊपर नेम लिखा हुआ है. तो ये जो रोल, नेम, डेट, ये जो है ये आपकी फील्ड है. ऐसी कोई भी नेम जो आपके डेटा को बताए कि ये डेटा क्या है, उस डेटा को डिफाइन कर दे, वो आपकी फील्ड कहलाती हैं और हम इन्हें कॉलम के नाम से भी जानते हैं. और ये सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर होती हैं जो आपकी
डेटा को एक्सप्लेन करने में, आपकी डेटा को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करती हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा सी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आर फील्ड्स इन अ रो। तो किसी भी रो में जो ये फील्ड होती हैं जो बताती हैं कि आपका ये डेटा यहाँ पर डाला हुआ है। रोज, रिकॉर्ड और टपल, जिन्हें हम लाइन भी कहते हैं, रिकॉर्ड्स भी कहते हैं और टपल्स भी कहते हैं, तीनों का मतलब सेम है। A row also called a record or tuple represents a single data item in a table। एक टेबल के अंदर जो पूरी की पूरी सिंगल लाइन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी रो काम करती है। ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा एंड एवरी रो इन द टेबल हैज द सेम स्ट्रक्चर। और हर रो का जो टेबल में है वो स्ट्रक्चर सेम रहता है। हम इसको समझते हैं, अभी आगे इसको हम एक ग्राफिक की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा। तो जैसे कॉलम बताता है कि डेटा क्या डल रहा है, लेकिन डेटा कैसा डल रहा है, वो डेटा किस प्रकार का है, उसको बताने के लिए हमें चाहिए होता है डेटा टाइप, जो हमारे डेटा की वैल्यू को बताता है कि वैल्यू किस तरीके की जा रही है। जनरली जो हम वैल्यूज टाइप करते हैं वो हम कैरेक्टर करते हैं, न्यूमेरिक में करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक करते हैं, बाइनरी डेटा करते हैं। तो डेटा टाइप जो ओपन ऑफिस में दिए हुए हैं वो कुछ क्लासिफाइड कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज के बारे में एक्सप्लेनेशन है। न्यूमेरिक टाइप, अल्फा न्यूमेरिक टाइप, बाइनरी टाइप, डेट टाइम और अदर वेरिएबल टाइप। न्यूमेरिक टाइप, अब यहाँ पर पहले मैं न्यूमेरिक टाइप बताने से पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि टेबल कैसे काम कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है नेम, यहाँ लिखा हुआ है डेटा टाइप, यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। एक्चुअल में ये टेबल है और ये जो पूरी कंप्लीट रो है, सबसे टॉप वाली जो रो है आप देख रहे हैं, ये आपकी फील्ड्स हैं। अब यहाँ लिखा है नेम, यानी कि ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ये नेम है। ये सब क्या है, डेटा टाइप्स हैं। ये सब क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं। आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ऊपर ये चीज लिखी हुई है। तो ये कॉलम है, यही फील्ड है, यही एट्रीब्यूट है जो बता रहा है कि आप किस तरीके का डेटा अपनी टेबल में रख रहे हैं। और अब बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये टाइनी इंट क्या है, तो बोले जी ये टेबल की एक वैल्यू है। लेकिन टाइनी इंट, टाइनी इंटीजर, स्टोर इंटीजर रेंज, अगर मैं इस पूरे की पूरी इन तीनों वैल्यूज को एक साथ इकट्ठा कर दूं तो ये बनता है मेरा एक रिकॉर्ड, जिसे हम रिकॉर्ड के नाम से समझते हैं। ये रिकॉर्ड हो गया मेरा। और अगर मैं इसकी बात करूं वर्टिकली, तो ये हो गया मेरा पूरा कॉलम। तो एक जो रो है वो आपकी पूरी लाइन हो गई। रिकॉर्ड, ये भी एक रिकॉर्ड ही हो गया। टपल भी हो गई, इसे हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, टपल भी कह सकते हैं। ये सब एक रिकॉर्ड्स हैं। जैसे बूलियन, यस नो, वैल्यू 0 और 1, तो ये क्या एक पूरा रिकॉर्ड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस टेबल में 10 रिकॉर्ड हैं। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। तो ये है कॉलम और रिकॉर्ड। और बीच के एक सिंगल की अगर हम बात करें तो ये आपकी सेल वैल्यू कहलाती है या टेबल का डेटा कहलाता है। अब बात करते हैं ऊपर जो हेडिंग लिखी है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप का डेटा कैसा होता है, ये आपका जो हमने डेटा के कुछ टाइप्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये ओपन ऑफिस बेस में सपोर्ट करते हैं। बूलियन, जिसमें आप केवल 0 या 1 वाली वैल्यू लेते हैं, जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स, येस और नो चाहिए होता है, जैसे मेल फीमेल। टाइनी इंट, जिसमें 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक के आपको नंबर्स चाहिए। स्मॉल इंट, जिसमें -2 की पावर 15 से +2 की पावर 15 -1 तक का डेटा स्टोर हो सकता है। जनरली हम बूलियन, इंट, बिग इंट भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं बूलियन, और बूलियन से भी ज्यादा यूज करते हैं हम इंटीजर का, याकि हमें इंटीजर वैल्यू लेनी होती है। डेसिमल भी यूज करेंगे जहां पर हमें पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए होती है। डेसिमल की भी बड़ी वैल्यू चाहिए होती है तो फिर हम डबल पे आ जाते हैं। डबल थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फ्लॉट उससे थोड़ा कम है, रियल फिर आ जाता है। लेकिन हम डेसिमल को यूज़ कर सकते हैं एक सिंपल मैक्सिमम प्रिसिशन लेकर के। तो ये हैं हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, जिसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटीजर का, उसके बाद डेसिमल का, देन आपका बूलियन का या फिर डबल का। अब अल्फा न्यूमेरिक की बात करते हैं, जिसमें आपके नंबर भी आ जाते हैं, कैरेक्टर भी आ जाते हैं, यानी कि उनमें कैलकुलेशन नहीं हो सकती। जो न्यूमेरिक थे उनमें कैलकुलेशन की जा सकती है, इनमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये एज ए कैरेक्टर हो जाएंगे। तो इनके 4 आपके डेटा टाइप हैं इसी में अल्फा न्यूमेरिक में, लॉन्ग वेरकेयर, केयर, वेरकेयर और वेरकेयर इग्नोर केस। अब लॉन्ग वेरकेयर क्या है, जिसमें आपकी जो डेटा वैल्यूज है वो बढ़ जाती है। स्टोर ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नंबर इंडिकेटेड बाय द यूजर, इट एक्सेप्ट्स एनी UTF-8 कैरेक्टर। तो मेमो का मतलब हुआ जब आपको बहुत ज्यादा यानी 255 से ज्यादा कैरेक्टर्स आपको डालने होते हैं। केयर में है टेक्स्ट फिक्स लिखा है,
अब ये टेक्स्ट फिक्स और टेक्स्ट दोनों में क्या अंतर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम बात करें, ये लिखा है यहाँ पर कैर, CHAR, 1 2 3 4, कितने कैरेक्टर हैं? 4 कैरेक्टर हैं। और अगर आपने वेर कैर में भी लिया 4, यानी दोनों को आपने 4 की अलाउंस दी, लेकिन आपने अगर कैर में लिखते हैं, आप कैर का कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और आपने वहां पर कोई 2 अक्षर का कैरेक्टर लिखा, तो यहाँ पर 2 अक्षर की कैरेक्टर की जगह और बच गई, क्योंकि 4 कैरेक्टर का स्पेस है, तो ये उस स्पेस को फ्री नहीं करेगा कैर अगर में आप लेते हैं। और अगर वेर कैर लेते हैं और आपने 4 लिया है, तो 4 तो उसका स्पेस ऑक्यूपाई है ही है, लेकिन अगर आपने 4 से कम स्पेस लिया तो फिर वो मेमोरी में डेटा को फ्री कर देगा। उसे लगा कि भाई मेरे को मिले 4 थे, लेकिन यूज मेरे 2 ही हुए, 2 कैरेक्टर यूज हुए, तो बाकी के 2 कैरेक्टर को मैं एज इट इज छोड़ देता हूं। तो ये क्योंकि वहां पर कोई डेटा नहीं है मेरा, तो वेर कैर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जितना डेटा यूज होता है वो उतना ऑक्यूपाई करता है, बाकी फ्री कर देता है। बाइनरी टाइप में आता है, जिसमें आप कोई इमेजेस वगैरह, साउंड है, ऐसी फाइलें स्टोर करते हैं, जिसमें आप लॉन्ग वेर बाइनरी लेते हैं इमेजेस के लिए, और फिक्स वैल्यू होती है आपकी बाइनरी की, तो बाइनरी या फिर वेर बाइनरी। डेट टाइम के लिए अगर आपको डेट स्टोर करानी है, तो ये आप डेट इस तरीके से स्टोर करा सकते हैं, जिसमें आपका मंथ, डे एंड ईयर, यानी पहले महीना, फिर दिन और फिर साल, इस तरीके से डेट आती है। टाइम भी आपको यहाँ पर टाइम भी आप स्टोर करा सकते हैं, जिसमें आवर, मिनट्स और सेकंड्स आ जाते हैं। टाइम स्टेप में आपका डेट और टाइम की दोनों की इंफॉर्मेशन कंबाइंड हो जाती है। तो ये 3 डेटा टाइप भी आप यूज करते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कॉमन है आपका डेट डेटा टाइप। फिर अदर भी आ जाते हैं, जो आपके जावा से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करने के काम करते हैं। अब बात करते हैं ओपन ऑफिस की लॉन्चिंग की, कि ओपन ऑफिस पर हम किस तरीके से एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओपन ऑफिस स्टार्ट करेंगे, और ओपन ऑफिस जब आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आपको नजर आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद ओपन ऑफिस बेस।